بتائیں گندم کی عدم خریداری پر جماعت اسلامی اور کسان یک زبان 16 مئی کو احتجاج اور دھرنے کے لیے پلان تیار چچا کہتے ہیں گندم خریدیں گے بھتیجی کہتی ہے نہیں جماعت اسلامی چنیوٹ کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام کی دھواں دار پریس کانفرنس کہا الیکشن میں وعدے کرنے والے سیاستدان ٹھس ہو گئے توبہ ٹیکسنگ سے ڈاکٹر عبدالجبار کا گندم درآمد کروانے والے حکومتی نمائندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے کے ساتھ فراڈ چچا کہتے ہیں گندم خریدیں گے بھتیجی کہتی ہے نہیں حکومت کی کسان کش پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی کسان بورڈ ایک ساتھ توبہ ٹیکسنگ میں کسان بورڈ کے رہنما ڈاکٹر عبدالجبار خان کی پریس کانفرنس 16 مئی کو مسجد شہداء سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک احتجاجی مارچ کا اعلان کیا سابق حکومت نے گندم کی کاشت کے وقت جو پالیسی طے کی تھی اس پر عمل کیا جائے گندم درآمد کرنے میں جو حکومتی نمائندے ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کا بروز جمعرات امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس ملک کے کسانوں اور غریب عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے لاہور میں مسجد شہداء سے سی ایم ہاؤس تک احتجاجی مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو خود قیمت اناؤنس کی گندم کی اس کے بعد انہوں نے شیڈول جاری کیا اب وہ اس سے پیچھے پھر رہی ہے تو یہ جو قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا گیا ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور اگر گورنمنٹ نے کوئی پالیسی چینج کرنی ہے تو جب اگلی فصل کاشت ہوگی تو اس وقت سے کی جائے اس وقت وہ پالیسی جاری کی جائے جب اس فصل یعنی گندم کی کاشت کے وقت انہوں نے پالیسی جاری کی تھی گندم کی عدم خریداری پر جماعت اسلامی اور کسان یک زبان 16 مئی کو احتجاج اور دھرنے کے لیے پلان تیار جماعت اسلامی چنیوٹ کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام کی دھواں دار پریس کانفرنس کہا الیکشن میں وعدے کرنے والے سیاستدان ٹھس ہو گئے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا پاکستان میں لاکھوں ٹن گندم ہونے کے باوجود درآمد کی گئی کسان نے کتاروں میں لگ کر مہنگی کھاد لی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 39 روپے فی من گندم کا ریٹ دیا کاشتکار کو ان کی محنت کا صلہ دینے کا وقت آیا تو گندم کی خریداری مراکز بھی بند کرا دیے جماعت اسلامی 2 بجے مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گراؤ کے اس طرف پیش قدمی کرے گی اور یہاں چنیوٹ سے بھی انشاءاللہ العزیز یہاں کسان الگ سے جماعت اسلامی کی برادر تنظیمات الگ سے اور جماعت اسلامی الگ سے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اس کال کے اوپر 16 مئی کو لاہور جائیں گے اور یہ دھرنا انشاءاللہ آغاز ہے مال روڈ پر مارچ بھی ہوگا اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جب تم نے خود طے کیا کہ 3900 ہوگا تو 3900 میں گندم غریب کی خریدو گندم کی خریداری نہ ہونے پر جماعت اسلامی اور کسان بورڈ 16 مئی کو لاہور میں احتجاج کریں گے کسانوں کے لیے حکومت کی طرف سے اچھی خبر ذرائع کے مطابق کابینہ نے پاسکو کا گندم خریداری کا ہدف 4 لاکھ ٹن بڑھانے کی منظوری دے دی وزارت فوڈ سیکیورٹی کی گندم خریداری ہدف بڑھانے کی سمری پر منظوری دے گئی پاسکو کے لیے گندم خریداری کا ہدف 18 لاکھ ٹن کیا جائے گا اس سے قبل پاسکو کے لیے گندم خریداری ہدف 14 لاکھ ٹن تھا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کسانوں کے لیے حکومت کی طرف سے اچھی خبر ذرائع کے مطابق کابینہ نے پاسکو کا گندم خریداری ہدف 4 لاکھ ٹن بڑھانے کی منظوری دے دی فیصل آباد میں لیمو پانی بنانا مشکل ہو گیا گراں فروش بے لگام 600 روپے سرکاری قیمت والا لیمو 1000 روپے تک پہنچا دیا شہری پریشان کہتے ہیں گرمی میں لیمو جیسی ضروری شے بھی پہنچ سے باہر کر دی فیصل آباد میں لیمو پانی بنانا مشکل ہو گیا لیمو کی مانگ بڑھتے ہی قیمت میں بڑا اضافہ قیمت 600 روپے فی کلو مقرر گران فروشوں کی بے لگام انٹری قیمت 900 سے 1000 کے درمیان کر دی دکانداروں نے لیمو رکھنا ہی چھوڑ دیا شہری کہتے ہیں جس چیز کی مانگ بڑھتی اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے گرمی میں لیمو جیسی ضروری شے بھی پہنچ سے باہر کر دی گئی گرمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے لیمو کا استعمال بڑھ گیا ہے لیکن عام عوام کی پہنچ بہت دور ہے اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں حکومت بھی کچھ خاص کا عمل درآمد نہیں کروا رہی ان سے نوٹیفیکیشن ویسا کوئی نہیں ہے اور ساتھ میں نا اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ کیا کرے پیچھے سے مہنگے لے کے آتے ہیں شہریوں نے لیمو کی قیمت کنٹرول اور گران فروشی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی ناروز سٹی 41 فیصل آباد چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف کے نام پر مہنگی اشیاء کی فروخت آٹا اوپن مارکیٹ میں 1050 روپے اور یوٹیلیٹی سٹورز پر 1500 روپے میں دستیاب یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی بھی نایاب شہری چکر لگا کر تھک گئے
सस्ता आटा चाहिए तो यूटिलिटी स्टोर पर मत जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स की निस्बत ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए सस्ता। आम शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त, ओपन मार्केट में 1050 रुपए में दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए रियायती कीमत 650 रुपए है। बेनजीर पर रजिस्टर्ड अफराद के अलावा कोई भी सस्ता आटा हासिल नहीं कर सकता। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने शहरियों को घुमा कर रख दिया। 4-5 दिन हो गया हमें है ना चक्कर लगा रहे, चीनी नहीं आ रही, हम इतने परेशान हैं बहुत ज्यादा। कभी कहते कल आएगी, कभी कहते परसों आएगी। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी भी नायाब। शहरी चक्कर लगा लगा कर थक गए। कहते हैं 4 दिन से मुसलसल आ रहे हैं, जो चीज सस्ती है वो दस्तयाब ही नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद की मकामी मार्केट में किसात बाजारी की फिजा ताहाल बरकरार। गाहक न होने से ताजर परेशान, लेन देन के मामलात भी मुतासिर। यार्न मार्केट फैसलाबाद में ईद के बाद से गाहकी बेहतर न हो सकी। ताजरों के मुताबिक गंदम बहरान के असरात मंडियों पर भी आ रहे हैं। फैसलाबाद की मुकामी मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार। खरीदो फरोख्त न होने से कारोबार ठप हो गए, लेन देन के मामलात भी मुतासिर। ताजरों की परेशानी बढ़ गई। ईद उल फितर के बाद से यार्न मार्केट से गाहकी बेहतर ना हो सकी। पाकिस्तान काटन सस्ती होकर 17,000 रुपए फी मन में दस्तयाब, मगर खरीदार मौजूद नहीं। अमेरिकन काटन 77 सेंट तक फरोख्त हो रही है। ताजरों के मुताबिक गंदम बहरान के बाद कारोबारी मामलात खराब हुए। स्पिनिंग और पावर लूम्स की बंदी से यार्न मार्केट सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। गाड़ियां सस्ती, पार्ट्स महंगे, ताजर हुकूमती पॉलिसी से नाराज। कस्टम क्लियरेंस होने के बावजूद चालानों की भरमार, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें कम न कर दी। कारों की फरोख्त में भी रवां माली साल के पहले 10 माह में सालाना बुनियादों पर 31% कमी रिकॉर्ड। गाड़ियों की कीमतें तो कम होना शुरू हो गईं, मगर स्पेयर पार्ट्स की दरामद के हवाले से ताजरों की मुश्किलात ज्यों की त्यों बरकरार। चेयरमैन बिलालगंज मार्केट सरगोदा रोड हाजी काशिफ कहते हैं तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, सिर्फ पिंडी और लाहौर के ड्राई पोर्ट्स पर माल क्लियर हो रहा है, मगर इसके बावजूद रास्ते में कस्टम और एंटी स्मगलिंग की जानिब से कंटेनर्स की रोकथाम करके चलान किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स की कीमतें कम नहीं हो रही। जो माल लाहौर और पिंडी में ड्राई पोर्ट पे क्लियर हो रहा है, उसको रास्ते में एंटी स्मगलिंग और जो एंटी दूसरे अदारे हैं कस्टम वगैरह के, वो क्लियर माल को भी पकड़ कर चालान करते हैं। कारों की फरोख्त में रवां माली साल के पहले 10 माह में सालाना बुनियादों पर 31% की कमी रिकॉर्ड। हुकूमत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए नाकिस पॉलिसियों पर कार डीलर्स फट पड़े। कहते हैं इन्वेस्टर्स ने कीमतों में मुमकिन मजीद कमी के पेश नजर सरमायाकारी रोक रखी है, जिससे खरीदो फरोख्त मजीद सुस्तरवी का शिकार है। इन्वेस्टर हो गया या जो एंड यूजर है उसमें वो वहाँ पे उसकी ब्रेक लग चुकी हुई है। पहले भी इससे काम शुरू हो रहा था क्योंकि तब कीमतें बहुत ऊपर एकदम गई थी कि तब लोग उस टाइम पीरियड में था उनका प्लान कि पता नहीं आगे जाके क्या हो जाएगा, तब भी रुक गए थे। और जब रिसेंटली इन्होंने ये काम किया है कि इनवॉइसेस को एकदम इतना ज्यादा वहाँ पे रेट नीचे लेकर आए, उसकी वजह से काफी ज्यादा कस्टमर रुक चुका हुआ है। कारोबारी अफराद कहते हैं हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुस्तहकम और देरपा पॉलिसियां तश्कील दे ताकि कारोबार चल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, 41 फैसलाबाद। दरामदाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स का नफाज सनतकारों के लिए दर्द सर बन गया। दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस के लिए पहले सिंध और फिर फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अदा करना पड़ता है। दोहरे टैक्स से कारोबारी तबका मुतासिर, ड्राई पोर्ट पर काम भी तेजी से होने लगा। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का दरामदाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर सीज टैक्स सनत और तजारत के शोबे के लिए तबाहकुन करार। इम्पोर्टर्स और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट हुकूमती फैसले से शदीद मुतासिर। दरामद कुनंदगान सामान की कस्टम क्लियरेंस फैसलाबाद की बजाय कराची से करवाने को तरजीह देने लगे। इम्पोर्टर्स का कहना है कस्टम क्लियरेंस के लिए दोहरे टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं। डबल टैक्स से बचने के लिए दरामदी शिपमेंट्स दीगर सूबों से क्लियर करवा रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ कहते हैं पहले सिंध और फिर पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर सीज टैक्स अदा करना पड़ता है। क्लियरेंस दूसरे ड्राई पोर्ट से होने से रेवेन्यू दूसरे सूबों को मुंतकिल हो रहा है, जबकि क्लियरिंग एजेंट्स समेत पोर्ट से वाबस्ता हजारों अफराद का रोजगार भी बंद होकर रह गया है। अगर हुकूमत एक जगह टैक्स ले तो ड्राई पोर्ट की रौनकें दोबारा बहाल हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखें आपका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आपका एक्सपोर्ट करने वाला और इसी तरह इंपोर्ट करने वाला फैसलाबाद, लेकिन यहाँ के ड्राई पोर्ट पे उस तरह से फैसिलिटेशन नहीं दी जाती। एक तो आपको पता है कि यहाँ और वहाँ के टैक्सेस में फ़र्क है, 9%, 0.9% और वहाँ पे आपको ये टैक्सेस नहीं लगते। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिडन बैरियर्स हैं
जो कि इम्पोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इम्पोर्टर्स का कहना है हुकूमत और मुतल्लिका इदारे कानून साजी के वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते, जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रामिश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। घर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर, एक हफ्ते में सरिये की कीमत में 15 से 20 हज़ार फी टन कमी। 2,65,000 वाला सरिया 2,50,000 रुपये फी टन हो गया। 2,50,000 वाला सरिया 2,30,000 रुपये फी टन में फरोख्त होने लगा। अपने घर की तामीर का ख्वाब हो गया कदरे आसान। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कमी, कीमत 10 रुपए सस्ता होकर 1220 रुपए फी बोरी हो गया। एक हफ्ते में सरिये की फी टन कीमत में 15 से 20,000 रुपए तक की कमी हो गई। 2,65,000 रुपए वाला सरिया 2,50,000 रुपए का टन हो गया। 2,50,000 रुपए टन वाला सरिया 2,30,000 रुपए पर आ गया। टिम्बर आयरन मार्केट के ताजर कहते हैं महंगाई कम होने से सरिया भी सस्ता हो रहा है। ये सब कुछ देखते हुए कि हमें बहुत यकीन है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला महंगाई और नीचे आएगी। आप देखें कल 15 तारीख है, 15 की रात को इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 14-15 रुपए पेट्रोल और सस्ता होगा। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से और चीजें सस्ती होंगी। सदर टिम्बर आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल ने आने वाले दिनों में बिल्डिंग मटेरियल मजीद सस्ता होने की भी नवीज सुना दी कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और मईशत बेहतर हो रही है। ये जो सरिये का मामला है अकेला सरिया नहीं मेरा भाई, आप देखें जो प्याज 400 रुपये किलो था वो आज 100 रुपये है। जो मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो था आज 400 से कम है। हर चीज अल्लाह के फजल से घी कम हो रहा है। शहरियों ने बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत जेलों में कैदियों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट जेल में अद्वियात की बड़ी खेप मौसूल। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत की 42 से जायद अद्वियात आइटम्स भिजवाई गई। अब हुकूमत का कैदियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया को महकमा सेहत की जानिब से अद्वियात की बड़ी खेप मौसूल हो गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से अद्वियात की 42 से जायद आइटम डिस्ट्रिक्ट जेल में भिजवा दी गई हैं। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशी महमूद का कहना था कि जेल में तमाम शिफ्ट में डॉक्टर मौजूद हैं। जेल में करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात भेज दी हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की तस्दीक के बाद अद्वियात भिजवाई गई हैं। कैदियों को बर वक्त इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात जेल में दस्तयाब होंगी। हमारे पास 50+ टाइप की मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल हैं। ऐसा कोई भी शोबा या ऐसी कोई भी मेडिसिन वहाँ पे नॉन अवेलेबल नहीं है जिसकी वहाँ पे ज़रूरत हो। वहाँ पे साइकेट्री के काफ़ी पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, उनके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है। कार्डियोलॉजी से रिलेटेड मेडिसिन अवेलेबल है और इवन हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। और हेपेटाइटिस के लिए अगर मेडिसिन उनको ज़रूरत होगी तो वो भी उनको वहीं से प्रोवाइड की जाती है। जेल अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जिम्मा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। मुफ्त तिब्बी सहूलियात दहलीज पर फराहम करने का ऐसा मंसूबा। जंग में भी क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। 3 एम्बुलेंसेज ने फील्ड में अद्वियात, अल्ट्रासाउंड और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की। वज़ीर आला मरियम नवाज शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। जंग में भी क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का आगाज। देही इलाकों के रिहायशी और दूर दराज इलाकों में बसने वाले मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत की फराहमी शुरू कर दी गई। प्रोजेक्ट के तहत जंग में 3 गाड़ियां फराहम की गयी। गाड़ियों में अद्वियात, अल्ट्रासाउंड समेत दीगर सहूलियात मैसर हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद कहते हैं कि वो मरीज भी मुस्तफीद हो सकेंगे जो किसी करीबी मराकिज़ से पर नहीं जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे आज से ये हमने कैंपेन शुरू कर दी यहाँ पे क्लिनिक ऑन व्हील्स, ठीक है जी। उसके बाद इसमें यहाँ पे ये एम्बुलेंसेज हमने अर्बन स्लम एरियाज़ के लिए हैं, जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे नज़दीक कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। वहाँ पे हमारा डॉक्टर, हमारी LHV, हमारे बाकी अमला भी मौजूद होगा एम्बुलेंसेज में, बल्कि एक एम्बुलेंस में अल्ट्रासाउंड भी मौजूद होगी। तो इसलिए वो बेसिक बुनियादी जो इसके टेस्ट होंगे लोगों के वो भी वहीं पे किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आज से शुरू किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को वहीं पे उनके डोर स्टेप पे सहूलियत मुहैया की जाए। घर के दरवाजे पर सेहत की सहूलत मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। 30 लाख से जायद आबादी वाले शहर जंग में पब्लिक टॉयलेट्स की कमी। शहर भर में सिर्फ 2 पार्क्स और एक बाजार में पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत मुयसर।
जंग शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की किल्लत अवाम को मुश्किलात का सामना। 30 लाख से जायद आबादी वाले शहर में अवामी बैतुल खला न होने के बराबर हैं। शहर भर में सिर्फ 2 पार्क्स और 1 बाजार में पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद हैं। जिला कचहरी, तहसील ऑफिस, शहर की मंडियां, बाजार और बेशतर पार्क्स पब्लिक टॉयलेट से महरूम हैं। शहरियों के साथ साथ ताजरों ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। जंग की आबादी 30 लाख से जायद है, लेकिन इस 30 लाख को बुनियादी सहूलियात से ये महरूम है। सिर्फ 2 पार्क्स में और 1 बाजार में पब्लिक टॉयलेट्स का इजाफा हुआ है। शहर में मवेशी मंडी है, गल्ला मंडी है और बहुत सी जगह पे दीगर तजारती काम हो रहे हैं। इनमें किसी जगह भी पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है जी। अहम शाहराहों, सरकारी इमारात, बाजारों में पब्लिक टॉयलेट्स न होने से शहरियों बिलखसूस खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को सख्त परेशानी है। शहर में अवामी बैतुल खला न होने से गंदगी फैलने लगी। यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से रोज़ मंडी में आवाम आती है। यहाँ पे वाशरूम का कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि गंदगी होती है। गुज़िश्ता 1 दिहाई में सिर्फ 2 नए पब्लिक टॉयलेट्स का इजाफा हो सका। मौजूदा बेशतर अवामी बैतुल खला टूट फूट के बाइस काबिल इस्तेमाल नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, सरकारी दफातर के बाहर से तजावुजात न हटाई जा सकें। फैसलाबाद में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, सरकारी दफातर के बाहर से तजावजात न हटाई जा सकी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अतराफ तजावजात की भरमार। मेन रोड पर गैर कानूनी पार्किंग कायम, जा बजा लगी रेडियां और गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक और पासपोर्ट ऑफिस आने वाले साइलिन को मुश्किलात। पासपोर्ट ऑफिस हुकाम का कहना है कि दीवार के बाहर मौजूदा तजावजात हटाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जंग में तजावजात के खात्मे के लिए इंतजामिया की मनसूबा बंदी मुकम्मल। अंदरून बाजारों में से भी तजावजात का खात्मा होगा। रेल बाजार में तजावजात का खात्मा करके मॉडल बाजार बनाया जाएगा। काउंटर लगाने के लिए 12 फुट तक जगह फराहम की जाएगी। एक ही तर्ज के काउंटर्स लगाकर बाजार को खूबसूरत बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अमेर ने CEO म्यूनसिपल कमेटी को जिम्मेदारी सौंप दी। तजावजात के खात्मे के लिए ज़िले सिटी अंजमन ताजरान की मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। दूसरे मरहले में अनारकली बाजार को मॉडल बाजार बनाया जाएगा। इससे तजावजात का खात्मा करके कारोबार को फरोग देंगे। फैसलाबाद में टोबा टैक्सिंग में बेहंगम तारों की भरमार, लटकते तार शहरियों के लिए मौत का पैगाम। फैसलाबाद के जाल चौक बाजार के अतराफ में बिजली की बेहंगम तार किसी बड़े हादसे को दावत देने लगे। दुकानदारों और ग्राहकों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कहते हैं कई बार दरखास्तें दी हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। लटकती तारों से चिंगारियां निकलने से लोगों ने बाजार आना छोड़ दिया। ग्राहकों का कहना है कि बाजार में आने से डर लगता है। दुकानदारों ने ग्राहकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फेस्को से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। टोबा टैक्सिंग के इलाका हड्डा रोड़ी में बिजली के लटकते तार इलाका मकीनों के लिए दर्देसर। लटकते तारें मौत का पैगाम सुनाने लगे। शहरियों का कहना था कि फेस्को को मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी भी बड़े सानहे का जिम्मेदार फेस्को होगा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर बिजली की तारों को मुकर्ररा हद पर पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाने का फैसला, तलबा 16 मई को अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाने का फैसला, तलबा 16 मई को अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। वोटिंग के लिए महकमा तालीम ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। DEO सेकेंडरी मोहम्मद अब्दुल जलील ने बताया कि स्कूल काउंसिल के लिए उम्मीदवारों के कागजात जमा होने के बाद निशानात अलाट कर दिए गए। चनियोट में स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबात एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों में होंगे। वोट हासिल करने के लिए तलबा और तालबात की मुहिम जारी। स्कूल काउंसिल सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होगी। काउंसिल्स का मकसद हम नसाबी सरगर्मियों का फरोग और तुलबा में कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाना है। 16 मई को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट चनियोट जो है उनके तलबा भी बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स के नॉमिनेट अलाट कर दिया, निशानात अलाट कर दिए गए हैं और बच्चे जो है अपनी कंपेन कर रहे हैं बड़े जोश खरोश के साथ, ग्रुप्स की शक्ल में और अकेले भी। और इसके साथ साथ हमने बैलेट पेपर भी इशू कर लिए हैं। बाकायदा हमने स्टाफ भी नॉमिनेट कर लिया है जो कि उस दिन इलेक्शन वाले दिन जो है इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से जो वो इलेक्शन का इनेकाद करेंगे। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात की गहमा गहमी। समुद्री में उम्मीदवार तलबा की इंतखाबी मुहिम जारी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। उम्मीदवारों को लैपटॉप, कलम, किताब, मेज और शहीन जैसे इंतखाबी निशान अलाट। 16 मई को 7 पैनल्स के दरमियान मुकाबला होगा। तलबा का कहना था कि हुकूमत का अच्छा इकदाम है जिससे वोट की अहमियत उजागर होगी। जीत कर तलबा और स्कूल के मसाइल हल करेंगे। स्कूल इंतजामिया ने भी गवर्नमेंट के इस इकदाम को खूब सराहा। इनका कहना था इस अमल से तलबा में सियासी शऊर उजागर होगा। PS कॉलेज फैसलाबाद समेत निजी तालीमी इदारों ने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज कर दिया।
میٹرک کے امتحانات سے فارغ طلبہ رزلٹ کے انتظار کی بجائے پری فرسٹ ایئر کلاسز میں داخلہ لیں۔ طلبہ وقت ضائع کرنے کی بجائے انٹرمیڈیٹ میں پڑھائی کا آغاز کریں۔ پی ایس کالج فیصل آباد سمیت نجی تعلیمی اداروں نے پری فرسٹ ایئر کلاسز کا آغاز کر دیا۔ ہم نے میٹرک کے ایگزامز دے دیے ہیں اور بہت اچھے ایگزامز ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا، اس لیے ہم نے پی ایس کالج میں فرسٹ ایئر کی پری کلاسز دینا سٹارٹ کر دی ہیں۔ ہم نے فرسٹ ایئر کی پڑھائی سٹارٹ کر دی ہے اور ہم نے اس میں کالج میں پری فرسٹ ایئر کی کلاسز سٹارٹ کی ہیں تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آگے ہم نے اپنے ایف ایس سی کے لیے اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ بچوں کے میٹرک کے ایگزامز ختم ہو گئے، ایون پریکٹیکلز بھی ہو گئے ہیں، تو بجائے اس کے بچے گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آ کے پری فرسٹ ایئر کلاسز جوائن کریں تاکہ بچوں کو کلیئر ہو سکے کہ ہم نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے اور مزید اس میں ہم کس طرح سے خود کو امپروو کر سکتے ہیں۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا کہتے ہیں رزلٹ کے بعد فرسٹ ایئر کی پڑھائی کے لیے بچوں کو کم وقت ملتا ہے، طلبہ کو ابھی سے پری فرسٹ ایئر کلاسز میں داخلہ لے لینا چاہیے۔ میٹرک کے امتحان سے وہ فارغ ہوئے تو ہم نے پری فرسٹ ایئر کلاسز کا آغاز کر دیا اور بچوں کو موٹیویشن دی، ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج تک ہم تقریباً ایڈمیشن کا 98% کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ پرنسپل پی ایس کالج عمر حیات کموکا کا کہنا تھا کہ ادارے میں بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ والدین میٹرک کے رزلٹ کے انتظار میں بچوں کو گھروں پر نہ بٹھائیں۔ پری فرسٹ ایئر کلاسز میں پڑھائی سے طلبہ انٹرمیڈیٹ میں اچھے نتائج دے سکیں گے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں جھگیوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے اہم اقدام، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی کمیونٹی سروسز سوسائٹی متحرک۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا جھگیوں میں تعلیم کو فروغ دینے کا عزم۔ این ٹی یو کمیونٹی سروسز سوسائٹی نے جھگی اسکول کے بچوں کے ساتھ ایک دن گزارا۔ آج جھگی اسکول کے طلبہ اور بچوں کے والدین کو تعلیم کی اہمیت بتانے کے لیے یونیورسٹی کا وزٹ کروایا گیا۔ My name is Sonia. I read in class 1. I live in Faisalabad. I like mango. جھگی والے بچے ہیں، یہ ہمارے جھگی کے افراد، پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد لوگ جھگیوں میں آباد ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو اول مقصد ہے وہ تعلیم کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کا ہے۔ طلبہ کو یونیورسٹی آڈیٹوریم میں معلوماتی کارٹون دکھائے گئے۔ فائن آرٹس کے طلبہ نے بچوں کو پینٹنگ اور مختلف تفریحی سرگرمیاں کروائیں۔ انچارج کمیونٹی سروسز سوسائٹی ڈاکٹر مزمل حسین اور دیگر اساتذہ نے بھی بچوں سے بات چیت کی۔ ڈاکٹر مزمل حسین نے بتایا 2 کروڑ سے زائد لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں۔ جھگیوں کے بچوں کو تعلیم دے کر پیشہ ور گداگری اور جرائم میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ آج کی اس ساری ایکٹیویٹی کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم ان بچوں کو ہمارے یونیورسٹی کے جو انڈر گریجویٹ، گریجویٹ پروگرامز کو ایون اٹھائیں اور اس سوسائٹی کے اندر یہ جو گیپ ہے اس کو مینلی فل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بچے بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں۔ اساتذہ کہتے ہیں جھگیوں کے بچوں کو تعلیم دلوانے میں سوسائٹی کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔